हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन in concave mirror. First we will discuss concave mirror, then we will go to next topic. Rule of image formation in concave mirror. बच्चों, मैंने पिछले क्लास में concave mirror के बारे में बताया था आपको. So this is rule number 1. यहाँ पर पहले एक concave mirror ड्रॉ कर लेते हैं. बैक सरफेस पॉलिश कर दिया. ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है. So this is not looking proper. Erase this. So यहाँ पर पॉलिश कर दिया. This is pole. This is center of curvature. ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर है. इस दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. This is called principal axis. This line is called principal axis. PA, principal axis. So inner surface is reflecting surface and outer surface is polished. बच्चों, फर्स्ट रूल कहता है अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगा, इफ एनी लाइट रे is coming parallel to principal axis, then after reflection it passes through focus. क्या फोकस से पास होगा. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, सपोज ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया और यहाँ पर इस पॉइंट पर मिरर पर इंसिडेंट हुआ, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस. So focus is a point बच्चों on the principal axis which divides this CP distance in two equal halves. So ये reflection के बाद ये इस तरह से यहाँ से पास करेगा. We will draw properly. So we may use just a minute. So यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, ये जो लाइट रे है, this is principal axis. So after reflection it will pass through a point that is called focus. So this is the reflected ray. So this point is called focus. F stands for focus. This is focus. और ये जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, this is radius and this is half of the radius, that is called focal length. This FP or PF distance is called focal length. This is called focal length and it is denoted by small f. बच्चों, अगर हम बहुत सारे पैरेलल रेस को भेजें, एक और पैरेलल रे को अगर यहाँ पर इंसिडेंट कराया, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट. So this is what the first rule says. If any light ray is coming parallel to the principal axis and getting incident on the mirror, then after reflection it passes through focus. So this is the first rule. So now we are going to discuss second rule. Second rule कहता है बच्चों, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के आता है और मिरर पर इंसिडेंट होता है, then after reflection it will pass parallel to the principal axis. So let us write down that point. Rule number 2: if any light ray coming through focus on the mirror, then after reflection it passes parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis.
So let us draw the ray diagram for that. So बच्चों पहले कॉन्केव मिरर, बैकवर्ड सरफेस को, बैक सरफेस को पॉलिश कर दिया. This is pole, this is center of this curvature, और ये जो लाइन है बच्चों, this is called principal axis. This is called principal axis. Principal axis. So यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, this is the point between C and P. C और P के बीच में जो पॉइंट है बच्चों, एकदम बीचों बीच ड्रॉ करना है. दैट इज कॉल्ड फोकस. सो अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के इस तरह से आ रहा है, मिरर पर इंसिडेंट हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, इसके पैरेलल चला जाएगा. इसी तरह से अगर इधर से भी कोई लाइट रे आ रहा है यहाँ पर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द principal axis. So this is called incident ray, this is called reflected ray. This is called incident ray, this is called reflected ray. So this is what the second rule says. अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होते हुए आएगा और मिरर पर इंसिडेंट होगा, then after reflection it will pass parallel to the principal axis. So this is the second rule. Now we are going to discuss third rule. So if any light ray is coming through center of curvature, then after reflection it will pass along the same line or it will be bounced back. So let us first write on that point. Rule number 3: if any light ray is coming through focus, coming through center of curvature, then after reflection it will get back on the same path. It will get back on the same path. पाथ मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता. दिस इज रास्ता. सो पहले यहाँ पर आप रे डायग्राम को समझिए. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द रे डायग्राम. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द रे डायग्राम. यहाँ पर कॉन्केव मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया. सो दिस इज आवर कॉन्केव मिरर. दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, और इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों. मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है. तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस जो होगा बच्चों सरफेस पर हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. सो दिस इज सेंटर. अगर यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर, इधर भी ड्रॉ करेंगे तो भी परपेंडिकुलर. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन मिरर पर आएगा, जो भी लाइट रे मिरर पर आएगा, जैसे ये यहाँ से इस तरह से आया, सपोज यहाँ से इस तरह से कोई लाइट रे आया, ठीक है. सो इट इज कमिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. देन आफ्टर रिफ्लेक्शन नॉर्मल इंसिडेंट है ये बच्चों. दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट. यहाँ पर इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आया, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है. इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ. इस बात को और जस्टिफाई करते हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो केस कंसीडर किया था. दिस इज द नॉर्मल. यहां से इंसिडेंट रे था, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज इंसिडेंट एंगल, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल. अगर हम इसे कम करेंगे बच्चों तो यह भी कम होगा. इसे और कम करेंगे नॉर्मल के साथ तो ये और कम होगा. और अगर नॉर्मल के अलॉन्ग ही लेकर के आएंगे तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही लौट जाएगा. सो अगर कोई लाइट रे किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो यह उसी पाथ पर लौट जाता है. सो दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू, आई होप सो. सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, कोई भी लाइट रे जैसे इधर से भी अगर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो इधर ही लौट जाएगा. इधर अगर कोई दूसरा लाइट रे आ रहा है, सपोज थोड़ा और कम एंगल पर भी लाए तो भी इधर ही लौट जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द third rule we understand. So if any light ray is coming through center of curvature getting incident onto the mirror, then after reflection it will return back on the same path.
और जैसे ये भी लाइन है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही कोई अगर लाइट रे आया तो ये भी नॉर्मल इंसिडेंट है, तो ये इधर ही लौट जाएगा। सो दिस इज थर्ड रूल। बच्चों जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं इन कॉन्केव मिरर, तो हम इन 3 रूल्स को यूज करते हैं। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। यहाँ पर एक बात और बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज कैसे बनता है, उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सो मिनिमम 2 लाइट रे की जरूरत होती है बच्चों हमें। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं तो वह हमें कैसे दिखता है, जैसे यह कोई ऑब्जेक्ट है और जैसे हमने कमरे में स्विच ऑन करा बल्ब को, बल्ब ऑन हुआ, लाइट यहाँ से चारों तरफ कमरे में फैल गया। यह जो लाइट है बच्चों यहाँ पर आकर के इंसिडेंट हुआ और फिर यहाँ से आकर के ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। सो जो रिफ्लेक्टिंग रेज होता है बच्चों, वो रिफ्लेक्टिंग रेज आकर के हमारे आईज पर, हमारे आईज में रेटिना पर इंटरसेक्ट होते और मिलते हैं और फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। सो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इमेज बनेगा बच्चों कहाँ पर, आई में, रेटिना पर इमेज बनेगा। सो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इसलिए देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या हो रहा होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा और वह रिफ्लेक्टिंग रेज हमारे आईज में कहां पर मिलते हैं, रेटिना पर मिलते हैं। तो जहां पर मिनिमम 2 लाइट रे हमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से चाहिए, तभी हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आई के रेटिना पर दिखेगा। सो लेट अस राइट दैट पॉइंट। जो पॉइंट हमने डिस्कस करा यहाँ पर वो ये है कि टू फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मिनिमम हाउ मेनी लाइट रेज आर रिक्वायर्ड, 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड। सो some special note to form the image of an object, to form the image of an object, minimum 2 light rays are required। अच्छा, दोनों लाइट रे ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर इमेज बनेगा। सो द रिफ्लेक्टेड रेज और द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज मीट ईच अदर, यहां से लिख सकते हैं बच्चों, द पॉइंट एट विच द टू reflecting rays meet each other, the image is formed at that point, the image is formed at that point। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में स्फेरिकल मिरर में जो कॉन्केव मिरर का केस कर रहे थे उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के पोजीशंस के लिए इमेज के पोजीशंस को हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हम लोग अगले वीडियो में आएंगे और चीजों को लर्न करेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। आप चीजों को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, एक सीक्वेंस में रनिंग नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज कर करके और चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।